સ્વૈચ્છિક રક્તદાતા દિવસ 1975થી ઉજવાતો આ દિવસ એટલે સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરનારાઓને સન્માન આપવા માટેનો એક અનેરો દિવસ. રક્ત એવી વસ્તુ છે દર્શક મિત્રો કે કોક આપે તો જ કોકનું જીવન બચી શકે. તબીબી સારવારમાં કરોડો લોકોને મોતના મુખમાંથી ઉગાર્યા હોય તો એ રક્તદાતાની રક્ત સેવા છે. આજનો દિવસ બ્લડ બેંક માટે અનેરો દિવસ છે, સમાજ માટે અનેરો દિવસ છે. 1975થી સતત જનજાગૃતિને કારણે એક એવું વાતાવરણ નિર્માણ થયું કે આજે લોકો સામે ચાલી અને લોહી દેવા આવી રહ્યા છે. હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ખૂટે છે, હજી પણ લોકોમાં ડર છે, હજી પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી લોકો રક્તદાન માટે સામેથી આવતા નથી. ત્યારે આજનો દિવસ એક જનજાગૃતિના પ્રયાસ રૂપે વિવિધ ભાગરૂપે પણ અનેરા આયોજન થયા છે. આપણે લાઈફ બ્લડ સેન્ટરના ડેપ્યુટી મેડિકલ ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર સ્પૃહા મેડમ સાથે આપણે સીધી વાત કરીશું. મેડમ, આજે બ્લડ બેંક દ્વારા કેવા પ્રકારનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે? આજે 1 ઓક્ટોબર આમણે કીધું એમ રાષ્ટ્રીય રક્તદાતા દિવસ છે અને આ વર્ષે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની અંતર્ગત જે 17મી સપ્ટેમ્બરથી ઝુંબેશ ચાલુ કરવામાં આવી છે એ આજે વિરામ લેશે. આખા ભારતભરમાં નહીં ખાલી આપણા રાજ્યમાં પણ આખા ભારતભરમાં 10,000થી પણ વધુ રક્તદાન 17 સપ્ટેમ્બરથી કરી અને 1 ઓક્ટોબર સુધી કરવામાં આવે એવી ઝુંબેશ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ શરૂ થઈ છે. એના ભાગરૂપે અમે પણ આ વખતે અમારા બ્લડ બેંકને એક સુંદર મજાનું સજાવી છે જેથી કરીને આજનો દિવસ અમને પણ એક ઉત્સવ જેવો લાગે અને જે ડોનર્સ આજે ડોનેટ કરશે એના માટે અમે એક સ્પેસિફિક સ્પેશિયલ સુવિધાઓ પણ રાખેલ છે અને મેક્સિમમ રક્તદાન આજે થાય એવો અમારી PRO ટીમે પણ પ્રયાસ કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 15 જેવા રક્તદાતાઓ થઈ ચૂક્યા છે અને આગામી જેમ દિવસ જશે એમ એનો આંકડો વધતો જવાનો છે. આપની બ્લડ બેંક ઘણા વર્ષોથી કાર્યરત છે, તો ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખાસ કરી અને ત્યાંથી પણ અહીં શહેરમાં ટ્રીટમેન્ટ માટે આવતા હોય છે, તો ત્યાંના લોકોને રક્તદાન પ્રત્યે આપે જાગૃતિ બાબતે કંઈક આયોજન કરેલ છે? હા, એટલે હવે વાત આવે જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારની, તો ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને રક્તદાન વિશેની જાગૃતિ પૂરી પાડવા માટે અમારે આ વખતે ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન અને ઇમ્યુનોહિમેટોલોજી એટલે કે ISBTIના નેશનલ ચેપ્ટર દ્વારા 2 એવા મોટિવેટર્સને મોકલવામાં આવ્યા છે જે લોકોએ પોતે તો પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન ખૂબ વખત રક્તદાન કર્યું છે, પણ એની સાથોસાથ એમના પરિવારને પણ એટલો મોટિવેટ કરેલ છે કે એના ફેમિલીની દરેક વ્યક્તિ અત્યારે 30થી 40 વખત રક્તદાન કરી ચૂકેલ છે. આજના સ્વૈચ્છિક રક્તદાન નિમિત્તે વિવિધ આયોજનના ભાગરૂપે હરિયાણાથી ભાગીરથસિંહભાઈ અત્રે ઉપસ્થિત છે અને એને રાજકોટની અંદર છેલ્લા 5 દિવસમાં ઘણું બધું એક અવેરનેસનું કામ કરેલ છે. આપણે સીધા જ એને પૂછીશું. हम यहाँ आपके राजकोट में ये जन जागरण अभियान के तहत हमारी एक संस्था है ISBTI, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी, उनके यहाँ और राजकोट ब्लड बैंक लाइफ के बुलावे पे यहाँ जन जागरण अभियान में आए हैं और हमने यहाँ 21 तारीख से और आज कल 30 तारीख तक 5 गांवों में और शहर में भी जो NGO बने हुए हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत की, रक्तदान के बारे में पता किया. ये ऐसा नहीं है कि यहाँ रक्तदान नहीं हो रहा है, यहाँ रक्तदान हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, लेकिन अभी क्या है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये निवेदन करते हैं कि जो रक्तदाता पहले रक्तदान कर रहा है वो अपना एक दीपक और जलाए, एक अपने मित्र को, दोस्त को साथ लेके आए. ये जोत से जोत जलेगी. आज एक दीपक जल रहा है, दूसरा उसके साथ जलेगा, तो ये जलते जलते दो आपस में ये पूरा जो है ना ज्वाला बन जाएगी. और ये हमें रक्तदान की तो आवश्यकता ये तो है नहीं कोई ये आज ले लिया तो कल जरूरत नहीं पड़ेगी. इसको तो निरंतर प्रयास से आगे बढ़ाते रहना है और नए लोगों को अपने साथ जोड़ना है. खास करके हरियाणा में भी आपने काम किया है बहुत सालों तक. हरियाणा और यहाँ गुजरात में आप गांव में घूमे हैं, 3-4 गांव में, तो क्या अंतर है उस दोनों प्रक्रिया में गांव में? ये अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है ना प्रचार और प्रसार का है, लोगों को मोटिवेट करने का है. हमने हरियाणा में गांव में गए, लोगों को मोटिवेट किया, उनको रक्तदान के बारे में बताया कि इसके रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती और ना ही किसी तरह का इसमें कोई
सुई के लोगों के वहम होता है कि सुई लगने से ये इन्फेक्शन हो जाएगा, जबकि ये तो हर थैली के साथ अपने नई है, मेडिकेटेड सुई है। तो लोगों के वहम धीरे धीरे जब तक दूर होंगे ये रक्तदान करने लग जाएंगे। और हमने वहाँ हरियाणा में प्रत्येक गांव में लोगों को समझा के गांवों में जाके एक रक्तदाता समिति बना दी, और रक्तदाता समिति से साल में ये 2 कैंप कम से कम लगा रही है, और वहाँ रक्तदान का सारा कार्य सही संपूर्ण अच्छे तरीके से चल रहा है। દર્શક મિત્રો, સ્વૈચ્છિક રક્તદાન દિવસ છે ત્યારે ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવું રક્તદાન ટોપ ઉપર છે, એમાં ત્રિપુરા રાજ્યનો નંબર આવે છે, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર અને ટોપ 5ની અંદર પણ આપણે ગુજરાત ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે। ત્યારે ખાસ આ દિવસોની છેલ્લા 15 દિવસથી ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે રાજસ્થાનથી એવી વ્યક્તિ કે સમગ્ર ભારતની અંદર એને એક અનેરું નામ મળ્યું છે અને એ નામ છે બ્લડમેન ઓફ ઇન્ડિયા। તો આ બ્લડમેન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે અમરસિંહભાઈ, અને આપણે सीधा અમરસિંહભાઈ સાથે सीधी बात કરીશું। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय रक्तदान दिवस की पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पिछले 21 तारीख से लेके निरंतर इस राजकोट में राजकोट वासियों का जो हमें प्यार और सानिध्य मिले, उनके लिए राजकोट वालों को बहुत बहुत बधाई। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा मेरे बारे में, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा इसमें जागृत हों और रक्तदान के क्षेत्र में जागृति आए, तो मेरा यही एक मिशन है। तो 1985 में, आज से 36 साल पहले, एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा था कोई सिख समाज का व्यक्ति। उस टाइम सरकार के कानून ऐसे थे कि कोई किसी को उठाता नहीं था। तो धीरे धीरे कानूनों में चेंज हुआ, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, लेकिन उस टाइम वो बुरी तरह से तड़प रहा था। मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी और मैंने उसको उठाया, तो हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने बताया कि इसको 1 बोतल ब्लड देना पड़ेगा। वो बच गया। उसके बाद में मुझे जुनून हुआ कि मैंने सारी ज़िंदगी इसी काम में मानवता की सेवा करनी है। तो मैं मेरे घर आया और साइकिल उठाई, और साइकिल पे लोगों को गांव गांव, राज्य राज्य में जब मैं मोटिवेट करने के लिए इसका अभियान चलाया, तो मुझे जो इसका रिजल्ट मिला, तो मैं किसी का सहयोग ना लेकर के आज तक मेरे स्वयं के खर्चे पे 425 रक्तदान कैंपों का आयोजन भी कर चुका हूँ। वह खुद 104 बार रक्तदान भी कर चुका हूँ। और जो 425 कैंपों का आयोजन मैंने मेरी तरफ से किया है, उसमें कुछ छोटा कैंप है वो मात्र 30 यूनिट का है, और बड़े से बड़ा कैंप 1050 का भी है। और सभी जो आज मुझे सुनेंगे आपके माध्यम से, 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। तो मैंने कार्ड में लिखा कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले रक्तदान करेगा, अन्यथा मेरे घर ना आए। 114 बारातियों ने पहले रक्तदान किया, फिर बेटे की बारात चढ़ाई। ये कारनामा अभी तक भारत नहीं, अभी तक पूरे विश्व में नहीं हुआ। और 5 अगस्त 2011 को मेरी माता जी का देहांत हुआ। तो आपके यहाँ गुजरात में क्या कहते हैं वो दिन को, जैसे 12 दिन के बाद में 12वां। तो मैंने उस दिन भी मेरे घर रक्तदान का कैंप ही रखा कि मेरा परिजन वही है जो आज यहाँ आके ब्लड डोनेशन करेगा। और इससे भी बड़ी बात है, आज से 18 साल पहले मेरे बड़े भाई की बेटी, वो भगवान को प्यारी हो गई। जैसे आपके मैंने पता चला कि आप गुजराती भाषा में लड़की को डिक्री कहते हैं। तो वो मात्र 14 साल की बच्ची थी। मैंने टीम को फ़ोन किया और उसकी आंखें दान की। मुझे पता चला कि किसी अंधे व्यक्ति को 1 आंख देते हैं। 18 साल हो गए, उस 14 साल की बच्ची की दोनों आंखें सुरक्षित देख रही है, और 2 व्यक्तियों को रोशनी मिली। उनका बहुत सानिध्य और बहुत प्यार मिला। ये भी एक छोटा छोटा काम है जो हमें करना चाहिए। और लगातार जो हम जिस मिशन के लिए यहाँ आए हैं, उसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, रक्तदान यहाँ राजकोट में कोई कम नहीं हो रहा। हम तो धन्यवाद करते हैं इस लाइफ सेक्टर ब्लड बैंक को, और इसके जो भी कार्यकर्ता हैं, जितना भी मैनेजमेंट की कमेटी है, वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है इस पे। आवा ज अवनवा विडियोज माटे अब तकनी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।